سورہ احزاب آیت نمبر 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اور کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ اختیار باقی نہیں رہتا جب کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے کہ انہیں ان کے معاملے میں گنجائش رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں جا پڑا. اے نبی، اور وہ وقت جب کہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر آپ نے انعام کیا اور اللہ نے بھی انعام کیا کہ تم اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے طعنے سے اندیشہ کر رہے تھے، حالانکہ اللہ سے ڈرنا آپ کو زیادہ سزاوار ہے. پھر جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کو آپ کی نکاح میں دے دیا تاکہ مؤمنین پر ان کے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے سلسلے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے. ان دونوں آیات کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پہلی آیت کا پس منظر کیا ہے. اس آیت کریمہ میں یعنی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم علیہ السلام کو پہنچائی جانے والی تکلیف کو اجمالاً بیان کیا ہے. ما قبل کی آیات میں تو خدا تعالی آپ علیہ السلام کو پہنچنے والی تکلیفوں کو ایک تکلیف کو بیان کیا تھا زید کے سلسلے میں وہاں اختصاراً بیان کیا تھا. اب یہاں سے خدا تعالیٰ انہی تکلیف کو یہاں پر خدا تعالیٰ اسی تکلیف کو بالتفصیل بیان کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے کہا کہ جب مؤمن اور مؤمنہ یعنی کسی بھی آدمی کے سلسلے میں اللہ کے رسول یا خدا کوئی فیصلہ کر دے تو اب اس کا حکم، اس کا امر، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، اب اس کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس میں چون چرا کرے. اب اس کے لیے اس حکم کو ماننا بالکل ضروری ہوا کرتا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ یہ غلام تھے. آپ علیہ السلام نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن یعنی حضرت زینب بنت جحش سے کرا دی تھی. حضرت زینب کو اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش کو ابتدا میں تو یہ رشتہ پسند نہیں تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے انکار بھی کر دیا تھا کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور شادی کر لی. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم نے حکم دے دیا تھا، جب رسول اکرم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ زینب کی شادی یہ زید سے ہونی ہے، تو پھر انہیں انکار کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر انہوں نے انکار کیوں
क्यों किया? इसका जवाब देते हुए साहिब मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रकम तराज है कि असल में शरीयत ने खुद हुक्म दिया है कफाअत का, मुमासलत का, इसको देखने का शरीयत ने खुद हुक्म दिया है। क्योंकि ज़ैनब में और ज़ैद में इन दोनों में कफाअत और मुमासलत नहीं पाई जा रही थी, इसलिए ज़ैनब ने इनकार कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। अगला सवाल फिर होता है इस पर, जब शरीयत का खुद हुक्म है कि कफाअत देखी जाए, तब शरीयत ने खुद हुक्म दिया है कि मुमासलत मियाँ बीवी में देखी जाए, और इसी बुनियाद पर जब ज़ैनब ने इनकार किया था तो फिर शरीयत ने इस उज़्र को तस्लीम क्यों नहीं किया? इसका जवाब देते हुए हज़रत थानवी भी रकम दराज है और मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब भी लिखते हैं कि असल में कफाअत और मुमासलत की दो किस्में हुआ करती है। एक कफाअत वो होती है जो दीनी हो, एक मुमासलत वो होती है जो दीनी हो। दीनी मुमासलत होना यह हर हाल में जरूरी है, चाहे बीवी राजी हो चाहे ना राजी हो, लेकिन दोनों में दीनी मुमासलत के दोनों का इस्लाम एक हो, दोनों का मजहब एक हो, यह हर हाल में जरूरी है। ये बीवी से पहले खुदा का हक है। और दूसरी कफात वो होती है कि जिसमें माली कफात, खानदानी कफात, नसबी कफात, ये बीवी का हक है और बीवी के साथ साथ खानदान का भी हक है। इस हक को इख्तियार करने का आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ अगर इससे कोई अहम मसलहत सामने आती हो तो इन हकूक को छोड़ने का आप अलैहिस्सलाम ने इजाजत भी दी है। मसलन दीनी मसलहत सामने आ जाए तो खुद आप अलैहिस्सलाम ने कहा है कि दीनी मसलहत के पेश नज़र खानदानी मसलहतों को, इस तरह से माली कफातों को तुम छोड़ दिया करो। इसी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने बहुत से रिश्ते कराए हैं। जब इतनी बात साबित हुई कि खानदानी कफात को और नसबी कफात को दीनी मसलहत के पेश नज़र छोड़ा जा सकता है, अब अगली बात यह है कि खानदान वालों को जब यह हक है तो रसूल अकरम को तो बदरजे औला इसका हक होगा कि आप खानदानी कफात को दीन की बुनियाद पर छोड़वा दे। क्यों? पहले आयत आ चुकी है अन्नबी औला बिल मुमिनीन, नबी का हक इंसान पर उसके नफ्स से ज्यादा करीब गए। तो नबी ने अपने इसी हक को इस्तेमाल करते हुए ये बात कही थी कि गरचे ज़ैनब के साथ खानदानी कफात नहीं रखता, माली कफात नहीं रखता, नसबी कफात नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हारा खानदान से ज्यादा हक रखता हूँ तुम पर। मैं हुक्म देता हूँ कि दीनी खानदान की बुनियाद पर यहाँ पर शादी होनी चाहिए। तो आपको ये हक था, आपने ये हक इस्तेमाल किया था, शरीयत का दिया हुआ हक था, लेकिन इस हक का इस हुक्म को देने के बावजूद हजरत ज़ैनब ने और उनके भाई ने इनकार कर दिया था। इस बुनियाद पर उनके सिलसिले में आयत करीमा नाजिल हुई। आगे ये तो एक मसला हुआ ज़ैनब की शादी का मसला कि शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई। अगली आयत में वही तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि में दूसरा मसला उठाया जा रहा है। शादी हो गई, मियाँ बीवी रहने लगे, चूंकि पहले से रिश्ता पसंद नहीं था, वो तो खुदाई हुक्म की बुनियाद पर शादी के लिए राजी हो गए थे। चूंकि मियाँ बीवी में बाहमी मुनासबत नहीं थी, लड़ाइयाँ होती थी। ज़ैद शिकायत करते थे कि ज़ैनब ऊंचे आवाज में बात करती है, अपना खानदानी गुरूर दिखाती है। बकसरत ये शिकायत हज़रत रसूल अलैहिस्सलाम के पास आने लगी। आप अलैहिस्सलाम को बदरियाए वही ये बता दिया गया था कि अब ये वक्त आ गया है कि अब ज़ैद अपनी बीवी यानी ज़ैनब को तलाक देंगे और वो आपके निकाह में आएगी। चुनांचे ऐसे ही हुआ। एक मरतबा हज़रत ज़ैद आप अलैहिस्सलाम के पास और शिकायतें करने लगे ज़ैनब के सिलसिले की। आप अलैहिस्सलाम ने कहा रुके रहो, गरचे आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया गया था, बता दिया गया था कि ज़ैनब आपके निकाह में आने वाली है, लेकिन फिर भी आप अलैहिस्सलाम ज़ैद को रहने के ज़ैद को ये हुक्म दे रहे कि आप अपनी बीवी को निकाह में रखिए। तकवीनी तौर पर पता था आपको कि ज़ैनब निकाह में आने वाली है, लेकिन तशरीई तौर पर आप मना कर रहे थे कि तुम्हें तलाक नहीं देनी। उसकी वजूहात में से यही वजह लिखी है कि दो के तकवीनी तौर पर निकाह में आने वाली थी, लेकिन तशरीह तो यही है कि तलाक अब ग़ुस्ल मुबाहात है, इसलिए तुम अपनी बीवी को अपने पास रहने दो। मज़ीद एक वजह मुमानात की ये भी लिखी है उलमाए किराम ने कि आप अलैहिस्सलाम को ये डर था कि मुशरिकीन और कुफ़ार कहीं ताने न देने लगे कि इसने तो अपने बेटे की बहू से शादी कर ली। इन दो बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने कहा था अमसिक अलैका ज़ौजक, कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख। कुरान कह रहा है इस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि, आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। अल्लाह ने क्या इनाम किया? मसलन मुसलमान बनाया। क्या इनाम किया? रसूल अकरम की सोहबत बख्शी। वो अनअमत अलैहि, और आपने भी इनाम किया। रसूल अकरम का इनाम क्या था? आपने अपनी सोहबत में रहने की इजाजत दी, शादी करा दी, इसी तरह से आज़ाद कर दिया। क्या कहा? अमसिक अलैका ज़ौजक, अपनी बीवी को अपने पास रहने दे, वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डरना। ये इत्तक़िल्लाह क्यों कहा? इसकी वजह ये लिखते हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि चूंकि तबई मुनासबत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी रखने का हुक्म दे रहे तो लड़ाई झगड़े का अंदेशा था, तो कहा इत्तक़िल्लाह, लड़ना मत, खुदा से डरना। वतुख़्फ़ी फ़ी नफ़्सिक,
नफ्सिका वल्लाहु मुब्दीही व तख्शा अन्नास, और आप अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे खुदा जाहिर करने वाला है। क्या मतलब बात ऊपर आ चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया था कि ज़ैनब ये आपके निकाह में आएगी, और इसको खुदा ने बाद में अमलन जाहिर भी किया। यही मुराद है इससे कि वतुख्फी फी नफ्सिका वल्लाहु मुब्दीही व तख्शा अन्नास, आपके दिल में पता था आपको कि ज़ैनब निकाह में आने वाली है, लेकिन आप छुपा रहे थे। इस आयत करीमा की तफसीर जुमहूर के मुताबिक यही है, कुर्तुबी ने, रूहुल मानी में अलूसी ने, इसी तरह से मफातिहुल गैब में राजी ने और दीगर जुमहूर मुफस्सिरीन ने यही तफसीर इख्तियार की है कि तुख्फी फी नफ्सिका से मुराद निकाह है। अलबत्ता साहिब जलालैन इस मौके पर तफसीर करते हुए उन्होंने हज़रत शिया की रिवायत जिक्र कर दी और ये बात कही है तुख्फी फी नफ्सिका से मुराद हुब्बी ज़ैनब के, जो कि बिल्कुल गलत है, बुहतान है। ये साहिब जलालैन की यहाँ पर खता है। व तुख्फी फी नफ्सिका वल्लाहु मुब्दीही व तख्शा अन्नास, आपको लोगों के तानों से अंदेशा था। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, हालांकि आपको अल्लाह से डरना ज्यादा सजावार है। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरा, फिर वही हुआ जो होना था जब ज़ैद अपनी जरूरत पूरी कर चुके। ज़व्वजना, कहा ऐ नबी हमने आपकी शादी करा दी। और शादी क्यों कराई उसकी हिकमत बयान कर रहे हैं। लिकै ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम, एक सिलसिला चला आ रहा था, मुंह बोला बेटा अपना बेटा माना जाता था, उसकी बीवी अपनी बहू मानी जाती थी, तो उससे शादी करना ये आर समझा जाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया कि तबलीग अमली के जरिए इस रस्म बद का इब्ताल कर दे, ताकि लिकै ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम, अब बाद में कोई शादी करने चले तो उस पर हरज न हो। इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, चूँकि ये हुक्म तक़दीर में लिखा हुआ था और अल्लाह जो लिख दे, जो कह दे, जो बोल दे, कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, वो होकर रहता है। आयत से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मसले में फैसले का वही हक इख्तियार है जो अल्लाह। आप क्या फरमाते हैं? दोबारा सवाल करें। आयत से ये बात मालूम हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मसले में फैसले का वही हक इख्तियार है जो अल्लाह। देखिए आप अलैहिस्सलाम जो फैसला करे मुमिनीन के सिलसिले में, उसमें दो तरह की बातें हो, यानी दो तरह के फैसले होते हैं। अगर वो दुनियावी अमर हो और दुनियावी अमर में आपने अपने इज्तिहाद से फैसला किया तो उसका वो ऐसा नहीं होगा जैसे अल्लाह का हुक्म होता है, यानी वहाँ पर बात माननी जरूरी नहीं होती है। दुनियावी अमर हो और आपने अपने तजर्बे से बताया हो, लेकिन अगर दीनी अमर हो या दीनी अमर ना हो, दुनियावी ही अमर हो और हुक्म इलाही से आपने फैसला किया हो, तो वहाँ पर आपकी बात को मानना ऐसे ही जरूरी होता है जैसे खुदा की बात मानना जरूरी होता है। कोई ज़क़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाह, इस आयत है इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु के अल्फाज से ये पता चलता है कि अल्लाह को भी और रसूल को भी तो बराबर इसका हक है कि वो किसी चीज़ में फैसला कर दे। ये मुतलक है। यही सवाल किया गया है कि क्या रसूल को भी अल्लाह की तरह बिल्कुल मुतलक इख्तियार हासिल है? इसलिए तो दोनों एक साथ, यही सवाल है, इसका जवाब यही तो मैंने भी जवाब दिया कि अगर रसूल फैसला करे वही इलाही को देखकर तो फिर अब इख्तियार वही होगा जो खुदा का होता है, और अगर रसूल दुनियावी उमूर में फैसला करे अपने तजर्बे की बुनियाद पर तो फिर वो हुक्म नहीं होगा और उसका वो मर्तबा नहीं होगा जो वही इलाही से, जो खुदा के हुक्म का होता है। और इसकी दलील यहाँ मुतलक है, हदीस में आती है ताबीर नख्ल का, कि ताबीर नख्ल में आपने हुक्म दिया था, लेकिन चूंकि वो दुनियावी उमूर में अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपने दिया था, इसलिए उसका वो फैसला नहीं था और उसका वो मर्तबा नहीं था जो खुदा की जानिब से आने वाले हुक्म का होता है। इस आयत का पस मंजर क्या है? इस आयत का पस मंजर जैसा कि तशरीह में आया यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकवीरन ये बता दिया गया था, वही इलाही से बता दिया गया था कि ये ज़ैनब आपके निकाह में आने वाली है, लेकिन चूंकि ज़ैद की और ज़ैनब की आपस में बनती नहीं थी, वो शिकायतें करते थे। वो एक मरतबा शिकायत लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो आपने उन्हें कहा अभी बीवी को अपनी ज़ौजियत में रहने दो। उस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह ने और उसके रसूल ने क्या इनाम किया, इसको यहाँ जिक्र है। अनअमल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, रसूल अकरम की सोहबत इनायत की, अल्लाह रसूल ने इनाम किया, रसूल अकरम ने आज़ाद कर दिया, अपनी फूफीज़ाद बहन से निकाह कराया, अपना महबूब बनाया। वतुख्फी फी नफ्सिका वल्लाहु मुब्दी, इस जुमले की बिल्कुल सही तफसीर है। वतुख्फी फी नफ्सिका वल्लाहु मुब्दी, आप अपने दिल में अमरे निकाह छुपाए हुए थे जिसे बाद में
अरे यार इस आयत का पस मंजर क्या है? इस आयत का पस मंजर जैसा कि तशरीह में आया यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकवीरन ये बता दिया गया था, वही इलाही से बता दिया गया था कि ये ज़ैनब आपके निकाह में आने वाली है। लेकिन चूंकि ज़ैद की और ज़ैनब की आपस में बनती नहीं थी, वो शिकायतें करते थे। वो एक मरतबा शिकायत लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो आपने उन्हें कहा कि बीवी को अपनी ज़ौजियत में रहने दो। उस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, रसूल अकरम की सोहबत इनायत की, अल्लाह रसूल ने इनाम किया, रसूल अकरम ने आज़ाद कर दिया, अपनी फूफीज़ाद बहन से निकाह कराया, अपना महबूब बनाया। इस जुमले की बिल्कुल सही तफसीर है। वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दी, आप अपने दिल में अमरे निकाह छुपाए हुए थे जिसे बाद में खुदा अमलन जाहिर करने वाला था। इस आयत करीमा में तुख्फी फी नफ्सिका से मुराद वो निकाह है जो आपका ज़ैनब के साथ होने वाला था, और इसकी दलील मल्लाहु मुब्दी ही का जुमला बताता है जिसको अल्लाह ने जाहिर किया और बाद में निकाह अमलन जाहिर हुआ है। क्या इससे तकिया का सबूत होता है? जी नहीं, इसे तकिया का सबूत नहीं होता। क्यों? तकिया कहा जाता है किसी दीन के मामले को अपने नुकसान से, अपने ज़रर से, अपने दुनियावी ज़रर से बचने के लिए छुपाना। अव्वलन तो आपको ये लग रहा था ये दीनी अमर नहीं, दुनियावी अमर है। नंबर दो, आपका इसमें कोई दुनियावी नुकसान नहीं था, बल्कि आपको छुपाने का मकसद भी लोगों को बचाना था कि लोग एतराज ना करें। यही बात साहिब मारिफुल कुरान ने लिखी है। अल्लाह की रसूल अल्लाह के नबी को इस बात का डर था कि कहीं ये लोग ताना ना देने लगे मुझे कि इसने अपने ही बेटे की बीवी से यानी अपनी बहू से शादी कर ली। ये डर था। खुदा ने इसी पर कहा कि चूंकि ये दुनियावी नहीं दीनी अम्र है, और दीनी अम्र में तो अल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, आपको खुदा से डरना चाहिए। निकाह के लिए तो गवाह शर्त है, यहाँ तो कोई गवाह नहीं है। इस आयत करीमा के दो मतलब बयान किए जाते हैं। ज़व्वजना कहा, पहला मतलब ये है कि हमने उनकी शादी करा दी, यानी ये हमारी ज़ैनब की खुसूसियत है कि हमने आसमान पर शादी करा दी, इसको खुसूसियत पर महमूल किया जाएगा। और दूसरा मतलब ये है कि ज़व्वजना कहा हमने शादी करा दी, यानी शादी की इजाज़त दी, अब बाकायदा शादी हुई है, गवाह के बैठे हैं और क्या कहते हैं इजाब कबूल की बाकायदा हुआ। दोनों मतलब इस आयत करीमा के इस जुमले के बयान करते हैं उलमा। आयत में किस हरज को दूर करने की बात की गई? अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना ये बाइस तान था।